Hello everyone, hope you all are doing well. Today we will start chapter number 2 of class 10th NCERT Maths, that is the polynomial. Yes, polynomial आपने class 9th में भी study किया होगा. In this video we will cover the introduction portion of this chapter and the exercise 2.1. Okay, now let's get started. 4x cube plus 3x square plus 2x1, this is a polynomial. Okay, this is a polynomial. Now how you will write it, आप इसको write कैसे करेंगे? See here, you will write p of x, it means polynomial. p of x क्या है यहाँ पर? एक polynomial है. This is a polynomial in x. p of x is a polynomial in x and the highest power of x. x की जो highest power होगी, यहाँ पर power देखो x की 1, 2 and 3. यहाँ पर x की power 0 है. Here the power of x is 0 because किसी की भी power 0 it means 1. So here the 1 into 1 is 1, इसीलिए write नहीं किया गया था. Now see here 0, 1, 2, 3. So highest power is 3. This will be called the degree. Okay, the highest power of x in p of x. p of x में जो भी highest power होगी that will be the degree of that polynomial. Okay, here the degree is 3. Now a point you have to remember. You have to yes, this is the key point जो आपको याद रखना है. डिग्री शुड बी अ होल नंबर. डिग्री एक होल नंबर होनी चाहिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना होगा. See here, there are some examples just like 4x plus 2. Here the power of x is 1. The power of x is 1. Here this is the polynomial and the highest power is 6. So degree is 6. And here the degree is 1. Here the degree is 6. And both are whole numbers. That's why these are the polynomials. But in these cases, यहाँ पर पावर होल नंबर नहीं है. दैट्स वाई ये आपके पॉलिनोमियल नहीं है. एक पॉइंट है जो आपको याद रखना है. अंडर द रूट की वैल्यू क्या होती है? 1/2. अगर मैं लिखती हूँ इफ आई राइट अंडर द रूट x, इट मीन्स द पावर ऑफ x इज 1/2 and 1/2 is not a whole number. Okay, 1/2 is not a whole number. That's why it is not a polynomial. This is very simple. Okay, degree should be a whole number. अगर डिग्री होल नंबर नहीं होगी तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा. Now, what is a linear polynomial, quadratic polynomial and cubic polynomial? Okay, so what is a linear polynomial? A polynomial of degree 1. Degree 1 का जो polynomial आपका होगा that will be the linear polynomial. For example, y plus 2, 4x plus 5. Here the power, here the degree is 1. ठीक है, यहाँ पर डिग्री क्या है? 1. यहाँ पर डिग्री क्या है? 1. दैट्स वाई इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल. आई एम रिपीटिंग दिस. लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा? जिसकी डिग्री क्या होगी? 1 होगी. पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड द लीनियर पॉलिनोमियल. एंड नाउ व्हाट इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2. डिग्री 2 का जो पॉलिनोमियल होगा दैट विल बी द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. फॉर एग्जांपल 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1. हियर द डिग्री इज 2. दैट्स वाई इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. सिमिलरली क्यूबिक पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3. Here you can see 3 is the highest power is the degree and here the degree is 3. That's why it is a cubic polynomial. Hope it is clear to you. Now very important and very simple point. See here, if p of x is a polynomial in x, अगर p of x कोई polynomial है x के terms में, and if k is any real number, it can be any real number, and then the value obtained by replacing x by k in p of x is called the value of p of x at x equals to k and will be denoted by p of k. दिस इज वेरी इजी. आप इसको दोबारा से रीड करके देखिए क्या बोला गया है. अगर एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x, मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाती चलती हूँ. अगर आपका कोई पॉलिनोमियल है p ऑफ x, सी हियर दिस इज अ पॉलिनोमियल x³ minus 3x minus 4. p ऑफ x इज अ पॉलिनोमियल इन x. ओके, एंड k इज एनी रियल नंबर. हियर k इज कुछ भी रियल नंबर हो सकता है. मैंने उस k को यहाँ पर 1 लिया है. ओके, कोई रियल नंबर मैंने क्या लिया है? 1 लिया है. Then the value obtained by replacing x by k in p of x. अगर आप इस p of x में x के प्लेस पर क्या राइट कर दोगे? k. सेम चीज मैंने रिपीट की. इस x के प्लेस पर मैंने जो ये k लिया था, दिस k मैंने उसको राइट किया x के प्लेस पर. यहाँ पर भी एंड यहाँ पर भी. ओके, एंड नाउ is called the value of p of x at x equals to k. तो जो आपके पास आंसर आएगा उसको आप क्या बोलोगे? वैल्यू ऑफ p ऑफ x. इस p ऑफ x की वैल्यू जब हमने x इक्वल्स टू k पुट की तो ये आती है. और उसको डिनोट कैसे करोगे? p ऑफ k से, जस्ट लाइक p ऑफ 1. आई एम रिपीटिंग इट. यहाँ पे आपने क्या किया है? एक पॉलिनोमियल आपको गिवन था p ऑफ x, x के टर्म्स में गिवन था. आपने क्या किया? उस x के प्लेस पर एक कोई रियल नंबर लिया. यहाँ पर रियल नंबर मैंने 1 लिया.
ओके मैंने कोई रियल नंबर क्या लिया 1, अब आप इस x के प्लेस पर इस रियल नंबर को सब्सटीट्यूट करेंगे. ओके x के प्लेस पर यू विल राइट 1, यू विल राइट 1, x क्यूब मीन टू बी 1 क्यूब माइनस 3x माइनस 3 इंटू 1 माइनस 4 एज इट इज. नाउ 1 का क्यूब 1 होगा, 3 इंटू 1 3 एंड 4, देन आंसर इज माइनस 6. सो द आंसर ऑफ p of 1 इज माइनस 6. होप इट इज क्लियर. एंड नाउ व्हाट इज द जीरो. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके आगे आएगा अभी चैप्टर्स में. आपसे बोला जाएगा यू हैव टू फाइंड आउट द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. व्हाट इज दिस जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल? व्हाट इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल? सी हियर, अ रियल नंबर k is said to be a zero of a polynomial p of x if p of k is zero. Okay, a real number k is said to be the zero of the polynomial. एक रियल नंबर k को आप एक पॉलिनोमियल का जीरो कब कहोगे? अगर p of x जीरो आ जाए. इसका क्या मतलब है? अगर आप इस k की वैल्यू को पॉलिनोमियल में डालो, ठीक है, एंड देन आंसर आपका जीरो आ जाए, देन आपका वो क्या होगा? पॉलिनोमियल का जीरो होगा. देन यू विल कॉल इट द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. सी एग्जांपल, p of x, it is given here p of x is x square minus 3x minus 4 and at x equal to minus 1. Now you will substitute x equal to minus 1 in this polynomial, then you will write p of minus 1. Now substitute the value of x, minus 1 square minus 3 into minus 1 minus 4. So p of minus 1 is plus 1 plus 3 minus 4. Answer is 0. ठीक है, आंसर आपका क्या है? 0. So x equals to minus 1. So the value of x at minus 1 gives us 0. So this is the zero of this polynomial. ये जीरो x की वैल्यू अगर आप माइनस 1 पुट कर रहे हो और आपका आंसर जीरो आ गया, इट मीन्स ये जो वैल्यू आपने x की ली है, दिस इज द जीरो ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल. आई एम रिपीटिंग दिस. आपसे जीरोस पूछी जाएंगे इस पॉलिनोमियल की जीरो क्या होगी, तो एक ऐसी वैल्यू, एक ऐसा रियल नंबर जिसको पुट करने पर, जिसको सब्सटीट्यूट करने पर पॉलिनोमियल में आंसर जीरो आ जाए, दैट विल बी द जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल. होप इट इज क्लियर टू यू. नाउ सी हियर, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट and very easy. p of x is ax plus b. यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल. लीनियर पॉलिनोमियल आपको मैंने बोला था जिसकी डिग्री क्या होगी 1. यहाँ पर डिग्री आपको 1 ही गिवन है. सो दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल. ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. और अगर मैं कहती हूँ आपको इसका जीरो फाइंड आउट करके देना है, ओके, आपको सिर्फ एक पॉलिनोमियल गिवन है, आपको कोई वैल्यू नहीं बताई गई, आपको बोला गया कि आपको फाइंड आउट करनी है x की ऐसी वैल्यू जो कि आप इसमें डालो एंड आंसर विल बी जीरो. ओके, नाउ आप क्या करेंगे? बिकॉज आपको p of x जीरो चाहिए, देन यू विल राइट ax plus b equals to 0. Here the value of x will be minus b by a. The value of x is minus b by a. Constant term divided by coefficients of x. इसका क्या मतलब है? यहाँ पर ये आपका एक पॉलिनोमियल था, ठीक है, दिस इज द पॉलिनोमियल, मैंने यहाँ पर राइट किया. इसको ध्यान से समझना सभी. दिस x इज अ वेरिएबल एंड द वैल्यू विद इट, ठीक है, जो वैल्यू इसके साथ, जो रियल नंबर इसके साथ राइट किया गया है x के साथ, दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड प्लस दिस नंबर इज द कांस्टेंट टर्म. ओके, देन ये माइनस बी बाई ए को हमने इस तरह से क्यों राइट करा? बिकॉज बी इज द कांस्टेंट टर्म. माइनस में तो आपने माइनस राइट किया, माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ x. ए इज द कोएफिशिएंट ऑफ x. ओके, होप इट इज क्लियर टू यू. अभी तक जो हमने टॉपिक कवर किया वो 9th क्लास तक का था, आपने उसको स्टडी किया हुआ था, जस्ट एक इंट्रोडक्शन था, आप उस चीज़ को रिमेंबर कर पाएँ, रिमाइंड कर पाएँ उस पुरानी चीज़ें. द मेन टॉपिक इज दिस, ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल. आपके पॉलिनोमियल की जो भी जीरोज होंगे आप उसको ज्योमेट्रिकली कैसे प्रेजेंट करोगे, ग्राफ पर किस तरह से प्रेजेंट करोगे, उस चीज़ को आज हम स्टडी करेंगे. ओके, सी हियर y इक्वल्स टू ax प्लस बी. दिस ax प्लस बी इज अ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, इज अ स्ट्रेट लाइन. ये ऑलवेज ही स्ट्रेट लाइन होगी. लीनियर इक्वेशन का ऑलवेज स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है. ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद ही कर लीजिए एक तरह से. और वैसे प्रूवन भी है, बिकॉज आप अगर ड्रॉ करेंगे देन स्ट्रेट लाइन ही ग्राफ आपका ड्रॉ होगा लीनियर इक्वेशंस के लिए. ओके, लीनियर इक्वेशंस के लिए आपका ऑलवेज स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही प्लॉट होगा. सी हियर द एग्जांपल, y इक्वल्स टू 2x प्लस 3. ये आपने 9th में स्टडी किया था, ग्राफ प्लॉट करना. दिस इज वेरी इजी. आप एक टेबल बनाएंगे, यू विल राइट x एंड y. ओके, नाउ यू विल पुट सम वैल्यूज of x so that you will get the values of y. Here I am putting x equal to 0. Now I am putting x equal to 0 in this equation, so I'll write y equals to 2. x के प्लेस पर आप 0 सब्सटीट्यूट करेंगे. y equals to 2 into 0 plus 3, y equals to 3. So
अगर मैंने x की वैल्यू 0 पुट की देन उससे मुझे y की वैल्यू 3 रिसीव हुई. सिमिलरली आई एम पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 1 देन आई विल गेट द वैल्यू ऑफ y एज 5. नाउ आई एम राइटिंग हियर टेबल में 1 एंड 5. x की वैल्यू 1 रखने पर y आपको 5 रिसीव हुआ. इस टेबल की हेल्प से अब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे. x0 एंड y3, दिस इज द पॉइंट. x0 and y3, this is the point 0 and 3, and x1 and y5, this is the point. Now आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे. दिस इज द स्ट्रेट लाइन वी गेट फ्रॉम प्लॉटिंग दिस पॉइंट्स ऑन द ग्राफ पेपर. दिस लाइन y इक्वल्स टू 2x + 3 इस इक्वेशन का ये ग्राफ है. ओके, दिस इज़ वेरी इजी. आपको इक्वेशन गिवन होगी, आपने सिर्फ पॉइंट्स प्लॉट करने हैं ग्राफ पर. दिस इज़ द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल. ये तो आपने 9th में भी स्टडी किया था, ये ग्राफ तो आपने 9th में भी प्लॉट किया था. नाउ सी हियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी हुई है ax² + bx + c इक्वल्स टू 0. दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब भी आप ग्राफ बनाओगे वो पैराबोला बनेगा. पैराबोला की शेप आपकी इस तरह से होगी, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड पोजीशन में. दीज आर द पैराबोलास. क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इसी तरह के आपके ग्राफ्स होते हैं. अब देखो जीरोस कैसे पता लगेंगी. ग्राफ से आप जीरोस कैसे पता लगा सकते हो. अगर आपको पॉलिनोमियल गिवन है तब तो आप इजीली उसको 0 के इक्वल रख के x की वैल्यूज निकाल लेते थे. पता लगा सकते हो आप कितनी जीरोज है. एक ग्राफ की हेल्प से आप किस तरह से पता लगा सकते हो कितनी जीरोज होंगी. ओके, सी हियर दिस ग्राफ. यहाँ पर ये जो आपका पैराबोला ड्रॉ किया गया है, इसने x एक्सिस को 2 पॉइंट्स पर कट किया. आई एम रिपीटिंग, इस ग्राफ ने इस x एक्सिस को, दिस x एक्सिस को इट कट इट एट 2 पॉइंट्स पर कट किया गया. तो यहाँ पर 1 to 2 जीरोज होंगी. जिस भी इक्वेशन का ये ग्राफ है उसकी 2 जीरोज होंगी. सिमिलरली यहाँ पर इस ग्राफ में एक ही पॉइंट पर कट किया है, दैट्स वाई 1 0 होगी. ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फर्स्टली हमने क्या ग्राफ देखा, 2 जीरोज हो सकती हैं, 1 0 हो सकती है, एंड द थर्ड ग्राफ यहाँ पर एक भी जीरो नहीं होगी बिकॉज x एक्सिस को इस ग्राफ ने कट नहीं किया. इस ग्राफ ने x एक्सिस को कट नहीं किया. ये जो आर्क हमने ड्रॉ किया इसने x एक्सिस को किसी भी पॉइंट पर कट नहीं किया. दैट्स वाई यहाँ पर नो जीरो, कोई भी जीरो नहीं होगी यहाँ पर. ठीक है, देखो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यू हैव टू रिमेंबर इट. ठीक है, अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 हैज एट मोस्ट 2 जीरोस. बिकॉज एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 है उसमें एट मोस्ट 2 जीरोस ही हो सकते हैं. ज़्यादा से ज़्यादा 2 जीरोस ही होंगी, उससे कम हो सकती हैं बट ज़्यादा नहीं होंगी. तो जीरोस यहाँ पर क्या होंगी, 0 1 एंड 2. कितनी जीरोस आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बना सकते हो, या तो 2 जीरोस बनेंगी या 1 होगी या 0. अभी पीछे मैंने आपको दोनों ग्राफ शो किया जहाँ पर 2 जीरोस बनी है एंड जहाँ पर 1 0 बनी है, एंड दिस इज द ग्राफ वेयर नो जीरो. ठीक है, polynomial of degree 2 has at most 2 zeros. Hope it is clear to you. This was the introduction of this chapter. Now we will start exercise 2.1. Firstly we will do the examples of this exercise. So this is example number 1. Look at the graph in the figure 2.9 given below. Each is the graph of y equals to p of x, where p of x is a polynomial. For each of the graphs find the number of zeros of p of x. अब आपने क्या करना है, ग्राफ्स आपको गिवन है, आपने बताना है कितनी जीरोस होंगी p ऑफ x की. ओके, दिस इज वेरी सिंपल. अभी मैंने आपको बोला द नंबर ऑफ टाइम्स द कर्व इंटरसेक्ट x एक्सिस. आई एम रिपीटिंग, द नंबर ऑफ टाइम्स दिस कर्व इंटरसेक्ट्स x एक्सिस विल बी द इक्वल टू द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ दैट पॉलिनोमियल. किसी भी पॉलिनोमियल में कितनी जीरोस होगी, इट डिपेंड्स अपॉन, वो किस पे डिपेंड करता है, किसके इक्वल होगा. जितने टाइम एक कर्व x एक्सिस को कट करेगी उतने टाइम. सी हियर द कर्व इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट ओनली 1 पॉइंट, सो द जीरो विल बी 1. इन दिस इट कट इट एट 2 पॉइंट्स, 2 zeros here, 1 2 and 3. Here only 1 point, 1 1 2 3 4. Okay, total number of zeros in any polynomial will be equal to the total number of times the curve intersect x axis. जितने बार कर्व x axis को कट करेगी उतने ही नंबर ऑफ जीरोस आपके पॉलिनोमियल में होंगी. So here is your exercise 2.1. Question number 1. The graph of y equals to p of x are given in the figure below. This आपको figures given है, जो वहाँ पर आपको graphs दिए हुए हैं y equal to p of x के for some polynomial p of x. You have to find out the number of zeros of that polynomial. Now see here, this is the part 1 and part 2. The main important point जो अगर आप याद रखेंगे, this question is very easy because देखो total number of zeros in any polynomial, किसी भी polynomial equation में जितने भी number of zeros होंगे वो किसके बराबर होंगे, किसके equals होंगे, total number of times the curve intersect x axis. जो कर्व x एक्सिस को कितने टाइम्स कट करती है, इट डिपेंड्स अपॉन दैट.
ओके हियर यहाँ पर देखो, अगर आप ये जो कर्व है, ये जो भी ग्राफ है, ठीक है, इसने एक्स एक्सिस को एक भी पॉइंट पर कट नहीं किया तो नो जीरो। हियर यहाँ पर कर्व आपको एक पॉइंट पर कट करती है तो 1 0। टोटल नंबर ऑफ जीरोज इन एनी पॉलिनोमियल इक्वेशन इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ टाइम्स द कर्व इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस। ओके, द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट का सॉल्यूशन क्या होगा, एक्स एक्सिस को एक भी पॉइंट पर कट नहीं किया, द नंबर ऑफ जीरोज इन पी ऑफ एक्स इज जीरो, एक भी जीरो नहीं है, बिकॉज दैट ग्राफ इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जो ग्राफ है वो पैरेलल आया एक्स एक्सिस के, एंड डज नॉट कट इट एन एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर कट नहीं करा है, दैट्स वाई यहाँ पर जीरोज नहीं है, द नंबर ऑफ जीरोज इज जीरो। एंड इन दिस, इस क्वेश्चन में क्या है, 1 पॉइंट पर कट किया है, दैट्स वाई नंबर ऑफ जीरोज, यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज आपकी कितनी होंगी, 1। So the solution of part 2, the number of zeros of p of x is 1 because the graph intersect x axis only at 1 point. You have to do the remaining part of this question because this is very easy. I hope it is useful for you. If you like my video, please like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you.